कबीर टाले टोले दिन गया। कबीर टाले टोले दिन गया। कबीर टाले टोले दिन गया। व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो जाए। कबीर टाले टोले दिन गया। व्याज बढ़न तो जाए। ना हर भजियो, ना हर भजियो, ना खत फटियो। ना हर भजियो, ना खत फटियो। काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो आए। कबीर टाले टोले, टाले टोले दिन गया। व्याज बढ़न तो जाए। ना हर भजियो, ना खत फटियो। ना हर भजियो, ना खत फटियो। काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो आए। कबीर टाले टोले दिन गया। व्याज बढ़न तो जाए, व्याज बढ़न तो, व्याज बढ़न तो, व्याज बढ़न तो जाए। कितने सिद्धे सादे सौखे सौखे लफज हैं। टालना, फिलहाल इग्नोर करना। कबीर टाले टोले दिन गया। टालदियां टोलदियां ना मेरा जिंदगी रूपी सारा दिन चला गया। माई होल लाइफ पैस्ड अवे। इस तरह मेरी लाइफ जाया जाती है। कबीर साहब साडी साइकोलॉजी जानते सी कि हाउ चैंपियन वी आर टू इग्नोर द ट्रुथ। कोई ओलंपिक होवे ना तो असी फर्स्ट आवांगे ट्रुथ नू इग्नोर करन वाले। पर जे ये ओलंपिक होए बई रो के दसो दुखी कौन है, तां भी असी फर्स्ट आवांगे। मैं सब तो ज्यादा दुखी हाँ। पर जे ओलंपिक ये होवे कि दसो सब तो धर्मी कौन है, फिर भी असी नंबर 1 आवांगे। मैं सब तो ज्यादा धर्मी हाँ। लेकिन जे ये वाला ओलंपिक होए कि ये दसो नास्तिक कौन है, फिर भी असी फर्स्ट आवांगे। ये कह के जिवें मैं हिपोक्रेट आना, वैसे बाहरों बाहरों ही सब कुछ करदा, अंदरों थोड़ा ना ट्रुथफुल लिविंग जीदा। तां भी मैं ही फर्स्ट आवांगा कि मैं अंदरों इंज हाँ झूठ मूठ, बाहरों शो ऑफ करदा हाँ। वो है वीर जी एक किताबची गल्लां ने, नम्रता नाल जीवो। हर कोई ये कह रहा होंदा नम्रता प्यार नाल जीवांगे, दूजा सिर ते चढ़ जाएगा, बस बहुत हो गई। इंज मैं नम्रता करदा नहीं, दूजियां नूं भी नम्रता वाला समझदा नहीं।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਆ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟਿਸਟ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟਿਸਟ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਈਕੈਟਿਸਟ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਈਕੈਟਿਸਟ ਲਿਖਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਕੰਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੱਖ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਅਪ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਡੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਡੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਐਨਕ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਐਨਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂ ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਰਾ, ये मेन्यू में से पढ़ के बताओ क्या बना है। बहरा पता ही करता है, मैनू ਉਹਦੇ ਕੋਲ पकड़ के कहता साहब जैसे आप नहीं पढ़े हुए मैं भी नहीं पढ़ा हुआ। वो कहना चाह रहा है कि बहरा अनपढ़ सी, मैनू ही अनपढ़ समझ रहा। खूब इसी तरह असी सारे इतने अग्रेसिव हो गए हैं, टॉलरेंस लेवल बिल्कुल नहीं है, बेरिंग पावर बिल्कुल नहीं है। पर यह क्यों नहीं है? ये बार बार बाबा जी की गल करता सी। कोई बाबा जी, कोई साधु जी, कोई संत जी, कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ वाले ने मैनू यह कह दिता है, तू जो कुछ है ना पिछले जन्म के कर्मा करके। तू जो पैदा होया सी ना, तेरे मत्थे ते भाग लिख दिते गए ने, दैट इज योर फेट, दैट इज योर किस्मत, दैट इज योर डेस्टिनी। गुरु साहब नहीं मनते। गुरु साहब पर फिर कहते हैं पिछले जन्म के लेखा होंदा है। तुसी इस श्लोक विच कहता नार भजियो ना खत फटियो। खत फटियो मीनस लेखा नहीं मुकदा कि केड़ी गल है। अज कबीर साहब साडी साइकोलॉजी नूं टुंबदे पे ने, क्योंकि सानू जानते सन। गुरु अर्जन पातशाह ये सारी गुरु नानक पातशाह जी की मेहनत की कंपाइल की हुई बाणी दे विच कबीर साहब की बाणी जोड़ के साडे सामने पेश करते हैं। कहते हैं कबीर टालै टोलै दिन गया। इस तरह एक एक दिन एक एक पल जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। इस तरह मेरी सारी जिंदगी रूपी दिन इंज जाता है, इंज चला गया, चला जा रहा है। व्याज बढ़न तो जाए। साध संगत बहुत विचारन वाला है। अनलैस वी टुकाओ ऑन आवर डेली लाइफ,
ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰ, ਇਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਨਿਦਾਨਾ ਮੀਨਸ ਰਿਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਲੈਣ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 108 ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸੀ ਰੱਖਿਆ 1 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਖਿੱਧ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਫਲॉज, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੁਆਇਨਸ, ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਚਾ ਧਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਕੰਮੇ ਨਕੰਮੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬਾਏ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਸਟੋਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਹਿਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਲੱਖ ਦੀ। 60 ਲੱਖ ਕੀ, 1 ਕਰੋੜ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦੇ, ਤਲਖੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਲਖੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਾ ਪੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ में हम सबसे बढ़िया होते हैं। अच्छा, ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਾਜ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਡਾਊਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਵੇਂ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਵੈਲਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ,
जिन्हों दुनिया जित समझती है, जिन्हों दुनिया कामयाबी समझती है, जिन्हों दुनिया वर्ल्डली सक्सैस समझती है, वो असी हर हालत विच ना अचीव करना चाहते हैं और सच नूं छोड़ते जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं तू सच नूं इग्नोर करता है क्योंकि तेनों सच बारे पता नहीं है। कबीर टालै टोलै दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। ब्याज की है? ब्याज है इंटरस्ट। इंटरस्ट किहदा वधदा है? जे असीं ये कहीए मैनूं जिंदगी रूपी सवास मिले ने, वैल्थ, ਉਹਦਾ इंटरस्ट ਵਧੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ लाइफ और लंबी हो जाएगी। उस टोन विच इंटरस्ट की गल नहीं चल रही। whatsoever money you have taken from somebody, ਉਹਦੇ अगेंस्ट तेरा इंटरस्ट वध गया। साध संगत कबीर साहब व्याज लफज भी वरत रहे हैं, पर इत्थे व्याज की है? नैगेटिव सेंस विच है कि तू जिहड़ा अपने अवगुण छुपा के रखना है और उन्होंने रैक्टिफाई नहीं करना चाहता, अपने आप को फिक्स अप नहीं करना चाहता, तैनूं धार्मी होने का या अमीर होने का या दुनियावी तौर पर कामयाब होने का माण हो गया ना, उन्हें जिहड़ा तेरा हंकार के कारण तेरे नैगेटिव्स ने ना जिहड़े, ए व्याज है, ए वधन के। पहला तू 5 डिग्री का गुस्सा करता सी, फिर तेनों 15 का आ जाएगा, फिर 100 डिग्री का करना आ जाएगा। जो तेनों 100 डिग्री का करना आ जाएगा, तेरी ब्रेन हैमरेज जरूर होएगी। जो 100 डिग्री का करना आएगा, तेरी अखां च खून उतर आएगा। 100 डिग्री का करना आ जाएगा, तेरी त्यूड़ी चढ़ जाया करेगी, तेरा मत्था कुटिया ही रहेगा, तू कदे हसेगा नहीं। साध संगत धार्मिक दुनिया में ये नोशन बनी हुई है, हसदे हो धर्मी नहीं हो सकते। शक्ल तो इत्थे 31 तरीक रहनी चाहिए है, पहली तरीक नहीं चढ़ है। हसदे हो? कैसा धर्म सीख लिया? गुरु पातशाह कहते नानक भगता सदा विकास। गुरु नानक पातशाह कहते, गुरु पातशाह बाणी रहे कहते हसंदिया खिलंदिया पैनंदिया खावंदिया विच मुकत। साडी नोशन चल रही है हसना बिल्कुल नहीं है। रुस्से रहो, लड़े रहो। साध संगत वो व्याज वधदा है। हुण ये व्याज नुकसान पहुंचाता है। मीनस जितना मैं सच नूं इग्नोर किया, मैं टालिया, इनू ना हर भजियो कहते हैं। मीनस सच नूं इग्नोर करना हरी ना भजना दे बराबर है। ना हर भजियो, ना खत फटियो। जेड़ा मैं लेखा अपना तैयार किया सी ना, जो मैं बचपन तो अपनी हैबिट्स बनाइया ने, मेरी हैबिट्स कित्थों बनदियां ने? मेरे बिहेवियर तो। एक एक हैबिट बनती जाती है। इस करके सानू क्या है, एज सुन एज पॉसिबल एक भी हैबिट पै गई ना, साध संगत एवं एक हैबिट तैयार कर दिया। मनु अचानक बचपन च हैबिट पै गई कि मैं ना 1 कप चाह पीनी है सवेरे सवेरे उठ के, सेठ बैठी। हुण ये हैबिट पक्की हो गई। सिंपल जी एक लैंग्वेज बना रहा। हुण ये हैबिट पक्की हो गई। हुण जिस दिन मैनू बैठी ना मिले, उस दिन मैं कहता हाँ, कहती हाँ, हाय सारा दिन सिर दर्द रहिंदा है, सवेरे बैठी नहीं मिली। ना हो मेरी लाइफ सारी एक बैड टी ते अटक गई है। भावें दिन 10 टाइम्स टी मिले, सवेरे बैड टी नहीं मिली। मैं जब तक बैड टी ना पिया, सिर दर्द रहिंदा है। ये हुण पक्की हैबिट बन गई। गुरु पातशाह कहते हैं कोई भी हैबिट पाण तो पहला सोच, वो है बिहेवियर। योर बिहेवियर मस्ट बी फिक्सड अप टू चेंज योर हैबिट। इनू थोड़ा जिहा होर वड्डा करिए। एक बंदा सिगरेट पींदा है, सिगरेट पहली बारी कॉलेज किसी ने क्या पी ले, पी के देख, कश लगा के देख, या शराब का गिलास जरा जिहा टच करके देख, कितना स्वाद आता है, कितना हाई फील करते हैं। जरा जिहा एक घुट पीता या एक सिगरेट का कश लिया, यह हुणे हैबिट नहीं बनिया। आस्ता आस्ता हुणे हैबिट बनेगा। जो हैबिट बन जाएगी, मैं पब के अगों लंघ नहीं सकांगा। असी उन्हें आस्ट्रेलिया गए, उत्थे मेरा मित्र कहता मैं जलंधर एक बंदे नूं मिलिया, वो बंदा कहता मैं उहदा नाम, मेरा ताया जागर सी, कहता ताया जागर कहता
मैं तो पीनी छड्ड दित्ती सी, पर जदों मैं खेतां चों सैकल तो लंघ रहा सी, सैकल मेरी बिल्कुल ठेके दे अगे चेन उतर गई। हुण जदों मैं चेन चढ़ाण लगा तो ठेका मैनू वाजा मारे। हैबिट सी ना, नहीं छुटदियां है आदतां। सिगरेट होवे भावें शराब होवे, भावें अपने धर्मी होने दी हंकार होवे, भावें अपनी जात दा, अमीरी दा, स्टेटस दा, ब्रांड नेम दा शो ऑफ होवे, कोई भी हैबिट्स जदों बन जांदियां ने, हैबिट्स छुटदियां नहीं। इस करके गुरु पातशाह कहंदे ने जाग, जे नहीं जागेगा ना, एक शब्द विच कहंदे ने इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लहे। इस कार्य जे कोई अलर्ट है, अवेयरनेस है, मीनस ਉਹਦਾ बिहेवियर खराब होने तो पहला ही ठीक कर दिता जाएगा। बिहेवियर ਦੇ कारण हैबिट्स बनदियां ने। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जाग रहा है, पर बचपन तो आदत पै गई सी बैठी दी, स्कूल कॉलेज तो आदत पै गई सी गालां कड्ढण दी, स्कूल कॉलेज तो पहला घरों गालां कड्ढण दी आदत पै गई सी, फिर स्कूल कॉलेज सिगरेट और शराब दी पै गई, हुण वड्डे हो गए आदतां नहीं छुटदियां। हुण जदों शराब पीण दी आदत पै गई है, सिगरेट पीण दी आदत पै गई, ये हैबिट पक्की हो गई है, हुण मेरी हैबिट छुटदी नहीं है। इस करके एक सेंटर विच मैनूं लिजाया जाएगा, उत्थे डॉक्टर मैनूं दवाइयां देगा, नाल मैनूं पढ़ाएगा, काउंसलिंग करेगा, समझाएगा, ताकि मेरा बिहेवियर फिक्स अप हो सके, जिदे कारण हैबिट छुट जावे। मैं बिहेवियर कभी फिक्सअप करता ही नहीं। बिहेवियर फिक्सअप करने वास्ते हमेशा मैं सच नूं टालदा रहा। दिन रात कमाएड़ो सो आयो माथै। जो मैं दिन रात कमांदा सी ना, मंदे मंदे ख्याल, नकमियां नकमियां आदतां, वो सारियां सामने आ गईयां, आ जांदियां। लोकी मत्थे लिखे भाग समझते ने, पिछले जन्म की किस्मत। गुरु पातशाह कहते ने तू इत्थे कमाई है और वो तेरी सामने आएगी। साडे जितने भी अंदर बिहेवियर गलत दे कारण हैबिट्स ने ना, ये बार पोर्ट्रे हो जाती है। कोई बच्चा पढ़ता पिया, सच नूं इग्नोर कर रहा है, करियर बना रहा है। एक कुड़ी नूं मैं कहा, बेटा तुसी इन्ना सोहना पढ़ाई की, तुसी इन्ने हसमुख सी, तुहाडी अखां थल्ले काले धब्बे बन गए ने, तुहाडा लगदा ही नहीं कि 6 महीने मसा होए ने और तुहाडी मैरिज हुई है, तुहाडा चेहरा प्रफुल्लत नहीं लग रहा। कहती वीर जी मेरी 22 सालों में मैरिज हुई है, पर 22 साल तक सारे कहते सी तू बड़ी हसमुख सी, बड़ी चीयरफुल सी, पता नहीं की होया। अगे गई ना मेरी सस और मेरा पति जिस तरह बोलते ने, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, मैं ना डिप्रैशन ही चली गई हाँ। ਇਹਦਾ मतलब सारी उम्र पढ़ाई वाल ध्यान रखिया, इंपॉर्टेंस उन्होंने दिती, प्रायोरिटी दिती, पर पेयड़ै सो सेव तू, सौरड़ै सुख बस, गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। ये सीखिया ही नहीं। एक पति कहता यार चंगा भला मैं कामयाब, इन्ने अच्छे नंबर आंदे, यूनिवर्सिटी पढ़न तो बाद मैनूं इन्नी अच्छी जॉब भी मिल गई, पर ज्यों दा मेरा विआह होया, वो ज्यों दी आई है साडा सारा घर अपसैट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कुछ टालते रहते हैं सारी उम्र, एकदम सब कुछ। वो जी नोट इत्थे चुभदी सी ना, इंज मेरा एक एक अवगुण सामने आ गया। यह खत नहीं फटदा, ये वाला लेखा इंज नहीं मुकदा,
ਜੋ ਜੋ ਹੈਬਿਟਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਗਜ਼ ਉੱਚਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਚਾ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ रुपया कमाया, गवर्नमेंट ने मैनू अपॉर्चुनिटी दी, तुम इस अर्थ पे रहते हो, हमारे यहाँ पर सिटीजन हो, ये वाला बिजनेस करते हो, ओके डू इट। तुसी 1 लाख रुपया कमाया, 40,000 टैक्स दे जाओ, तुहाडे 60,000 वाइट, तुहाडे 60,000 प्रवान, तुहाडे 60,000 पवित्र हो गए। ਲੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਚੋਂ ਜਿਤਨਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਤਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਧਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਵੈਲਥ। ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਜਾਗਾਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਗਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ। ਜ਼ਕਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜ਼ਕਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੰਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਜੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਟੈਕਸ? ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ। ਸ਼ਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੋ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਉਤਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਲਾਲੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਥੋੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। He just attacked। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਜ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਦਿਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੈਲਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਇਹ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਜੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਪਤਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੂਠ ਬਚੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੜੀ ਸੁੱਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦਾਜ ਵਿੱਚ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇੰਜ ਜੰਮ, ਇੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਇੰਜ ਈਵਲਸ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਦੇ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇ, टॉलरेंस लेवल दे दे, तेरी कोई बेइज्जती करे और तू सहार सकना है वापस कर दे। ये सारे चंगे चंगे गुण बाबर मेरे को रोज मंगदा है। बाबर जम है इस शब्द दे विच, इस शब्द नूं हिस्टरी तो इलावा अपने ते टुका के देखिए। असीं बाबर बाणी दे चारों शब्दां नूं समझिया, चारों शब्द मेरे ते टुकाए जा रहे हैं। अज जे मैं टुकावां, समझां, अपने जीवन नूं फिक्सअप करना चाहां, जोरी दान मंगिया जाता है। इस तरह जम रोज साडे कोलों दान मंगदा है, जबरदस्ती साडे कोलों चंगे चंगे गुण, गॉडली क्वालिटीज, वर्च्यूज मेरे कोलों खोंदा है, फैच करता है। मैं ते अगे ही छड्डन नूं तैयार बैठा सी। क्यों? क्योंकि मैं क्या शराफत छोड़ दी मैंने, नम्रता छोड़ दी मैंने, हंबलनेस छोड़ दी मैंने। मैं छोड़न वास्ते तैयार बैठा सी और लुटन वास्ते तैयार बैठा सी। यह खत नहीं फटदा ना, मौत आ गई। नार भजियो ना खत फटियो, काल पहुंचियो आए। मौत आ गई, मेरी आत्मक मौत। आत्मक मौत तदों होती है व्हेन वी आर फुली अलाइव एंड वी लीव आवर वर्च्यूज। अपनी वर्च्यूज छड़ देना आत्मक मौत होती है। जदों भी कोई बंदा गलत काम करेगा, किसी का पर्स खोएगा या किसी दे नाल बेईमानी करेगा, उन्होंने कहा जाता है तू अपनी जमीर की आवाज सुन, तेरी कॉन्शियस अलाउ कर दी है। जेड़े साडियां धीआं नूं तंग करते हैं, असीं उन्होंने कहते हैं तुहाडी कॉन्शियस अलाउ कर दी है, जे तुहाडी धी नाल इंज कोई करे तो अच्छा इहदा मतलब कॉन्शियस की मौत हो जाती है। हाँ, कॉन्शियस नूं जमीर कहते हैं, कॉन्शियस नूं विल कहते हैं। कॉन्शियस दी विल दी आत्मक मौत नूं काल कहते हैं गुरबाणी विच। यही मेरा वीर तुहाडे नाल सांझ कर रहा सी। पर असी जितने शब्द साध संगत विचारते रहे, काल का मतलब शरीरक मौत करते रहे, जम का मतलब मरण तो बाद वाला करते रहे। मरण तो बाद वाले करण दे कारण साडा जीवन विच अवगुणा का व्याज वधदा जांदा है। क्यों वधदा है? क्योंकि असी सच नूं इग्नोर करते हैं। सच नूं इग्नोर तां करते हैं जे सच सुन लिया, जे सच समझ लिया, मनु बदलना पै जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी पॉपुलर एक पोम है, उहदे विच ओह कहंदा है कि मैं लोकां नूं कहंदा सी रब नूं मिलना है, रब मिला दिओ, रब मिला दिओ। बड़े लोकां दे बड़े तरीके रब मिलन दे मैं अप्लाई कीते, पर एक दिन बड़े कॉन्फिडेंट बंदे ने मैनूं कहा फलानी गली अंदर सैकेंड फ्लोर ते पहला पहला जिहड़ा घर है उत्थे एक बंदा आया होया, वो तैनूं रब नाल मिला सकदा है। कहंदा मैनूं बड़ा अच्छा लगा भी वाह, बड़ी देर बाद एक बड़ा जेन्युइन बंदा आया। कहंदा मैं टुर के गया, जदों मैं टुर के पौड़ियां चढ़ रहा सी, मैं सोचा जे रब जी मिल गए, मनु झूठ बोलना छोड़ना पेगा, मनु जियो मैले बाहरों निर्मल छोड़ना पेगा, मनु गली असी चंगियां चारी बुरियां छोड़ना पेगा, मनु हर किस्म की हिपोक्रेसी छोड़नी पेगी। जे रब जी मिल गए फिर तो जिंदगी कोई फन ही नहीं रहेगा। कहंदा मैं पौड़ियां चलदे चलदे ना ख्याल बदल लिया और मैं अपने ना पैरों की जिहड़ी जुत्ती है वह खड़ाक सुनाई ना दे जाए, इस करके मैं सोचा अदरे खोरे रब जी बैठे ही होन, मनु आवाज ही ना मार लैन। मैं जुत्तियां उतार लियां पब्बां दे पार। मैं ना सोचा मते बाहर निकल ही ना आन। मैं उस घर दा बाहरों कुंडा मार के पब्बां दे पार उतर के पौड़ियां उतर के दौड़ गया। आई डोंट वांट टू मीट रब जी। इस करके सानू ये फंडा बहुत पसंद आता है, मरण तो बाद रब मिलेगा, मरण तो बाद सचखंड मिलेगा, मरण तो बाद स्वर्ग होंदा है, मरण तो बाद नरक होंदा है, मरण तो बाद उत्ते परलोक होंदा है। अज अमेरिका अंदर गोरे इन्हां गल्लां दी बहस करते हैं, मिडल मैन रिक्वायर्ड और नॉट। वाह पातशाह तुसी सानू मिडल मैन तो छुड़ा गए। अज गोरे टॉक शोज अंदर बहस कर रहे हैं हैल और हैवन होंदा है कि नहीं। कबीर जी कहते ने ना जाना ना
जाना बैकुंठ कहाँ ही ना जाना बैकुंठ कहाँ ही जान 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 सब कहें कहानी जान जान सब कहें कहानी। कबीर साहब कहते मैं नहीं जानता बैकुंठ किथे है। लोगों को पता मरण तो बाद ऐसे करो स्वर्ग जाते हैं हेवन जाते हैं। लोग इस करके दुनिया भर दे सारे धर्म के नां हेठा कर्मकांड करते हैं, ए वाले रिचुअल्स करके हैवन विच जाते हैं आफ्टर डेथ। लोकी कहते ने ए वाले कर्म करोगे तो आफ्टर डेथ नरक विच जाना पेगा, दोजख विच जाना पेगा, उहदे वास्ते पर्टिकुलर कर्मकांड करो। कबीर साहब कहते ने जान जान सब कहे ताई, एवरीबॉडी नोज मरण तो बाद स्वर्ग किथे है। देख आए हो साध संगत? मैं तो नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं मरिया नहीं। पर जे मैं मर गया मुड़ के आवांगा नहीं। कबीर साहब कहते ने मैं भी नहीं जानता बैकुंठ स्वर्ग हैवन जिथे पैराडाइज जिथे गॉड रहिंदा है मरण तो बाद। ते लोकी इस स्वर्ग की इच्छा और नरक के डर के कारण जी कुछ करते ने ना। कबीर साहब कहते हैं जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चर निवास। ता तक तू सच दे नाल नहीं जी सकता जो तक तेरे अंदर यह भावना है कि नरक जावा ना ते स्वर्ग मरण तो बाद मिल जाए। हुण कबीर साहब तुसी समझाना की चाहते हो? कबीर साहब कहते हैं कहो कबीरे कहिए काए साध संगत बैकुंठे आए। जे तू सच नाल जींदा है ना, सच की कंपनी करता है ना, साध संगत का मतलब नंबर ऑफ पीपल विच बैठना नहीं होता। साध संगत डज नॉट मीन मैनी नंबर ऑफ पीपल आर सीटिंग एंड यू आर सीटिंग अमंग देम। उन्होंने साध संगत नहीं कहते ने। साध संगत का मतलब होता है सतगुर दी मत दी संगत मेरा मन करता है सुरत करके। सतगुर बाजू संगत ना होई, सतगुर दी संगत की जाती है, नंबर ऑफ पीपल दी नहीं की जाती। सानू भुलेखा है, मनु बचपन तो भुलेखा सी। मम्मी कहती सी प्रभात फेरी आ रही है उठना, देख चौथे महल्ले आवाज ढोलकियां छाने दी आ रही है उठ। मैं सुता रहिंदा सी। फिर प्रभात फेरी दूजे महल्ले तक आ गई, आवाज ढोलकी छाने दी उच्ची हो गई, देख नेड़े आ गए ने उठ। फिर प्रभात फेरी देख साडी गली च आ गई है हुण ते उठ। देख प्रभात फेरी साडे घर तो अगे चली गई है हुण ते उठ जा, पिछों ही संगत दे दर्शन कर लै। साध संगत इनू संगत दे दर्शन नहीं कहते ने। नंबर ऑफ पीपल नू नगर कीर्तन ही जाके देख लेना, वो सारे फुल चढ़ाई जा रहे हैं, उधरों प्रसाद ले जा रहे हैं, ट्रक ते गुरु ग्रंथ साहब जी रखा होया। इनू नहीं साध संगत कहते हैं। साध संगत किनू कहते हैं? सतगुर की गल नू मेरा मन सुरत करके सुने ताकि दा बिहेवियर के कारण दी हैबिट्स चेंज होण, इनू संगत करना कहते हैं। ते जदों असी संगत करते हाँ, ए जींदे जी स्वर्ग है, ए जींदे जी बैकुंठ है, ए जींदे जी रब जी नाल एक मिकता है। हुण जदों इस पक्षों बाकी दे शब्द पढ़ोगे ना, काया कल्प हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, पैराडिम शिफ्ट हो जाएगी। एक जगह एक भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे सी, असां भी उत्थे जाना। किथे पढ़ रहे सन? जिथे किसी की डेथ हो गई सी, डेथ का भोग सी, सारी संगत बैठी, सारे टब्बर वाले रो रहे सन और सारी संगत इमोशनली बड़ी चुपचाप बैठी हुई और भाई साहब बहुत रस नाल गा रहे सन, असां भी उत्थे जाना। जदों भोग पिया मैं उन्होंने कान च पूछा, भाई साहब जी जाना है? यू रियली वांट टू गो? क्योंकि तुसी इस भाव नाल गा रहे हो, ए जिहड़ा बंदा मर गया है, ए जिथे चला गया है, असां भी उत्थे जाना। सच्ची जाना चाहते हो? कहते नहीं। मनु बड़ा ही दुख लगा।
ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਜ ਕਾਰੀ 'ਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਏ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ, ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਪੂਰਾ ਅੰਗ, ਪੂਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੱਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਨਾ ਟੁਰਨ। ਡੋਂਟ ਕਾਪੀ ਪੀਪਲ, ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਪੀਪਲ, ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਫੋਲੋ ਦ ਟਰੁਥ। ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੋ ਔਰ ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨ ਫॉर यू, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, सब कुछ बिगाड़ के जागना है ना। देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, अंधेरा जब होने लगा तो रोशनी देखी, सारा कुछ बिगाड़ के जागना है, पहले ही जाग पैना, गलत आदत ना पा। आज कबीर साहब ने सिखाया, समझाया